ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਔਰ 30% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਕੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੈਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਈਵਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਫੂਡ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੇਖੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਚੰਗਾ। ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਹੈਲਦੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਗ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਫਰੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਜੇ ਉਗਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜੀ ਤੇ ਐਗਰੀਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਗਰੀਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਖਾਓਗੇ ਉਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਹਾਉ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, MSP, ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼, ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ? ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MSP ਦੇਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਊਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਡ ਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਐਡ ਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਜੌਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਡੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਡ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜੀ, ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਜਿਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਪੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने ऐड करते रहो। सर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी काफ़ी चर्चा में है आजकल और उसमें कई लाइसेंस रद्द हुए पहले, अब रेड्स हुई हैं, मनीष सिसोदिया जी को भी उनका नाम आ रहा है। और क्या चक्कर है, पूरा मामला क्या है सर कि LG और दिल्ली सरकार के बीच की तकरार है या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? देखिए फंडामेंटली CBI रेड का मतलब ये है कि जो CBI ये चार्जशीट लगा रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी जिसको कैंसिल कर दिया गया है उसके कारण सरकार का नुकसान हुआ, एक्सचेकर का नुकसान हुआ, कुछ लोगों को बेनिफिट हुए जी। और उसी के उस पॉलिसी के अगेंस्ट देखो मैं भी ये पहली बार देख रहा हूं कि एक पॉलिसी बनाने या कैंसिल करने पे आप ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस पे रेड पड़ रही है जी। अब
सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर होगा कि इस चीज को प्रूव करे। वो जो उनका दावा है कि इसके कारण लॉसेस हुए हैं या किसी को बेनिफिट पहुंचाया गया है या मंत्रियों को या जो भी कमिश्नर है एक्साइज पॉलिसी के, उनको जो भी बेनिफिट पहुंचे उसको प्रूव करना है जी। क्योंकि अदरवाइज ये पॉलिटिकल टारगेटिंग लगेगी जी। और मैं सोच रहा था 2014 से अब 2024 आने वाला है जी। जब 2014 आने वाला था जी। तो नरेंद्र मोदी जी पे भी बड़े केस बनाए गए थे जी। जिसने उनको और लाइमलाइट में रखा जी। उनको और पावरफुल किया जी। तो कहीं ये विंडिक्टिव मैं ये नहीं कह रहा कि ये विंडिक्टिव है या कुछ गलत नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे या इंक्वायरी डिसाइड करेगी। बट आई थिंक इस केस में हिंदुस्तान की जनता का ये हक बनता है कि उनके सामने ट्रांसपेरेंटली रखा जाए कि ये पॉलिसी के कारण ये 5 लोगों को बेनिफिट हुआ, ये हमें लॉसेस हुए और इस कारण से जब वो चीज पकड़ी इस कारण से ये चीजें कैंसिल की गई, तभी एक जनता में मैसेज आएगा कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो वाकई करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रही हैं। मैं ईडी ने इससे पहले भी जहां जहां रेड्स की वहां पे बड़ी ऑब्वियसली हमें करप्शन नजर आ रही थी, राइट। तो मेरे को लगता है कि अब ईडी सीबीआई इन सारी एजेंसीज पे एक प्रेशर है कि वो प्रूव करें कि दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे के ऊपर भी रेड पड़ी थी तो हमने ये बोला था कि अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूव करे, फिर उन्होंने अगले दिन बताया कि ये कैश वहां से निकला है। तो मेरे को ये लगता है कि पॉलिटिकल लेवल पे ये ट्रांसपेरेंसी ताकि हमारे सिस्टम्स पे भरोसा बना रहे, ये बहुत क्रिटिकल है। बाकी अब जैसे जैसे इंक्वायरीज होंगी हमें इसके ऊपर और डिटेल मिलती रहेगी। बिल्कुल सर, मनीष सिसोदिया की बात हुई तो ये बात नहीं हो सकती कि दिल्ली के स्कूलों की बात ना हो, क्योंकि मनीष सिसोदिया को माना जाता है कि दिल्ली के स्कूलों को जिस तरह से उन्होंने बनाया और उसका दावा किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अब बिहार से टीम आ रही है दिल्ली में विजिट करने के लिए और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम उनका भी स्वागत करते हैं। देखो, इसको 2 तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखते हैं कि दिल्ली के एटलीस्ट कुछ स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जी, और बिहार में नई सरकार बनी है और अगर उनके मिनिस्टर उस बेस्ट मॉडल को लाके वहां पे इंप्लीमेंट कर पाए जी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट ना हो, क्योंकि जो एक फ्रंट बन रहा है विच इज एंटी बीजेपी फ्रंट कि भाई अब 24 के इलेक्शन में हु विल फाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी का, उसमें नीतीश कुमार जी का, ऐसे जो अपने तेलंगाना के सीएम हैं डॉक्टर राव, ऐसे कुछ नेताओं का नाम आ रहा है कि दे कुड बी पोटेंशियल कैंडिडेट्स। इवन ममता बनर्जी का नाम आ रहा है। इनमें से कौन क्रेडिबल बनेगा, तो एक महागठबंधन जिसे बोल रहे हैं वो बनने की कोशिश हो रही है जी। अब इसको लोगों की सपोर्ट है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। आप बेस्ट चीजें सीखो, एक दूसरे से सीखो। हमें जरूरी नहीं हर बार पोलैंड जाना है। आप दिल्ली में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो आपके ओपोजिशन वालों ने किया, उनसे सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो। और भारत की जनता इतनी, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसको स्केलेबल करो। ये नहीं कि हम 20-25 स्कूलों में, दिल्ली की रिक्वायरमेंट अलग है, बिहार की रिक्वायरमेंट अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेस्ट चीजें एक दूसरे से सीख नहीं सकते। हम इसको होपफुली पॉजिटिवली लेते हैं कि इसको ये नहीं कि ये काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेशन दी जा रही है कि यही एक मॉडल है जी। तो आई एम श्योर कि बिहार में भी बहुत स्मार्ट लोग हैं जो आपको बिहार की सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा एजुकेशन का मॉडल बना के दे सकते हैं जी। तो उस तरफ भी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर देख सकते हैं, वहां पे भी नजर डाल सकते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सिस्टम के साथ अगर आप बच्चों को सुविधाएं दें, एक हाइब्रिड मॉडल जो फ्यूचर है। और अगेन, किस तरह की पढ़ाई, आज हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम अपने बच्चों को दें, उनको मेहनती, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, अगर करेजियस बनाएंगे तो अपने आप लाइफ के चैलेंजेस को बेटर और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए उनको रेडी करें। हम उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए ताकि वो चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करें। हम समहाउ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले, कॉलोनियल माइंडसेट है कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है जी। आप इंग्लिश सीखो, पर इंग्लिश आपकी आईक्यू डिफाइन नहीं करती जी। हम हर रोज एग्जाम्पल देखते हैं हमारे इंडिया में जिनके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल चाहे उतने अच्छे ना हो, पर वो बहुत ही बेटर डिसीजन और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट को अपनी मदर टंग में समझना शुरू करोगे, आपकी एब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगी। उससे क्या होगा कि हाई क्वालिटी रिसर्च फ्यूचर में उसमें जो हमारे लेवल जो होगा, जो हमारे बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट ब्रेन्स बनेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग और डीप होगी। तो हमें वो अपना कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ के अपनी मदर टंग में इनिशियली बच्चों को जो आप इंग्लिश सीखो, हमने पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करना है, वो भी हमारी एक स्ट्रेंथ बनी रही है, उसको भी यूज करो। भाषाएं सारी अच्छी हैं, पर आप अपनी जो कल्चर है, अपनी जो विरासत है, उसको भी लिवरेज करो और उसमें प्राउड फील करो। सर, चाइना का जो रिस्पांस रहा है ताइवान की विजिट को लेकर,
तो चाइना कह रहा है कि हम फ्यूचर इंटेंशंस हैं जो वो हमने क्लियर कर दी हैं। देखो ये एक बहुत ही रिस्की सिनेरियो चल रहा है, और मेरे को जो 2-3 सिचुएशंस जो नजर आ रही हैं, एक तो उन्होंने वर्चुअली बेसिकली उन्होंने काइंड ऑफ पूरा उसकी सिमुलेशन किया है कि अगर हम ताइवान पे अटैक करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे जी। और उनके व्हाइट पेपर ने ये बताया कि अभी अटैक करना चाइना के लिए भी रिस्की होगा जी। राइट, क्योंकि चाइना के जितने भी डेवलप्ड सिटीज हैं, जो इंडस्ट्री है वो उसी कोस्ट पे है, उस ईस्टर्न कोस्ट पे हैं जी। और ताइवान ने भी बेटर वेपन्स और एडवांस वेपन्स लेने शुरू कर दिए हैं जी। और यूएस से इन ऑल प्रोबेबिलिटी इस कॉन्फ्लिक्ट में खुद इन्वॉल्व होगा अगर ताइवान पे अटैक होता है। हालांकि ऑफिशियली वो बोलते हैं कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, पर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दे आर वेरी क्लियर कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रहेगा और प्रैक्टिकली यही चलता रहेगा। अब इंटरनल सिचुएशन चाइना की ये है, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ताइवान को इंटीग्रेट करना है, इसको टेक ओवर करना है, तो इसका मतलब हर राष्ट्रपति ये सौगंध खाता है कि भाई मैं इसको करूंगा। और जो लास्ट टाइम जी जिनपिंग जो बेसिकली राष्ट्रपति हैं जी, वो तीसरी 5 ईयर टर्म के लिए अपने आप को उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है, विच इज अगेंस्ट द मैंडेट। इससे पहले 2 टर्म्स के बाद राष्ट्रपति हट जाते थे और उनको पहली बार भी जब लाया गया था तब भी उनको लाने का मेजर पर्पस ये था कि ये ही इज बेस्ट सूटेड और उनकी पॉलिसी में क्लैरिटी है कि वो ताइवान को इंटीग्रेट करेंगे, पर समहाउ ताइवान इंटीग्रेट नहीं हुआ और उनके ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए वो अग्रेसिव वर्ड। अब नवंबर में अगर वो तीसरी टर्म मिल जाती है तो शायद चीजें कूल डाउन होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि वो अगले एस्पेक्ट पे या अगली डेवलपमेंट पे लग जाएं। अब इन सब के बीच में ग्लोबली इसके कुछ इंपैक्ट्स हैं, क्योंकि ताइवान एक मेजर सेमीकंडक्टर सप्लायर है। ट्रेड रूट जो है जहां से ज्यादातर आप ये समझ लीजिए कि 88% जो बिगेस्ट शिप्स हैं उस 130 किलोमीटर जो चाइना और ताइवान उसके बीच में से निकलते हैं, 66% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड उस रूट के थ्रू होता है। तो अगर वो अनस्टेबल होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पे इंपैक्ट आता है, वो कॉस्टली होती है और महंगाई पे और इंपैक्ट आएगा। अब इसमें भारत के लिए 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि हमारे लिए इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या सिचुएशंस हैं। एक तो ये है क्योंकि अमेरिका ने वहां पे अपने स्पीकर को भेज के, अपनी कांग्रेस के स्पीकर को भेज के, हाई लेवल एक रैंकिंग ऑफिशियल को भेज के सारा ध्यान चाइना का उस तरफ कर दिया है। इससे चाइना का कुछ ध्यान जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को सेटल करने के लिए जो भारत की तरफ थे वहां से हटेगा, क्योंकि अब चाइना की अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो उनके लोग हैं वो देख रहे होंगे कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त ताइवान के एंगल पे क्या करती है, क्योंकि उनका बड़ा क्लियर कट मैंडेट है कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। उससे इंडिया के ऊपर से सर्टन ये जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस चलती है हमारे बॉर्डर्स पे वो थोड़ी सी कम होंगी। दूसरा, ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट ईयर पॉलिसी डिसाइड की थी जिसमें हमने $10 बिलियन रफली 80,000 करोड़ की सब्सिडीज चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी थी। अगर ताइवान का वो जो सप्लाई चेन रिस्क पे आती है इस टेंशन के कारण, तो पूरी दुनिया एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरफ ढूंढेगी कि हम कहां से चिप्स की सप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड लेने जाते हैं, आप कार्स लेने जाते हैं, सब आपको बोलते हैं जी वेटिंग पीरियड है या महंगी है क्योंकि जी चिप्स की शॉर्टेज है। ये हम हर रोज ये बात, जब कुछ भी लेने चले जाओ ये आप बात सुनते हो। तो मेरे को लगता है कि उस रिस्क को कवर करने के लिए इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इंडिया को भी हो रही है और इंडिया भी दुनिया को कर सकता है। उस पे हमें एक्टिवली काम करने की जरूरत है। इन द मीन टाइम, जैसे चाइना ने किया, अगले 10-15 साल जब जो चाइना का अब इस वक्त जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइम चल रहा है जिसमें यूएस और चाइना एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कितनी एस्केलेशन तक झुक सकता है। ये रिस्की टाइम है पूरी दुनिया के लिए, पर इस वक्त चाइना और यूएसए का ध्यान एक दूसरे पे है। अगले 15 सालों में भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने डिफेंस सिस्टम्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग कर ले, स्पेशली अराउंड चाइना बॉर्डर्स एंड पीओके बॉर्डर्स। 15 सालों बाद इस कॉन्फ्लिक्ट, ये डेफिनेटली ऑलरेडी ये चाइना पे इसका असर आना शुरू हो गया है। उनकी इकोनॉमी पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बहुत रिस्क पे, नेगेटिव ग्रोथ है, बैंक्स वहां पे बंद हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रफली 85% मतलब डाउन आया है उनका जो लोन लेते हैं, चाहे कंपनीज हो चाहे इंडिविजुअल्स हो। अगर लोन नहीं ले रहे हैं इसका मतलब लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्लियरली इसका मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट डाउन जा रही है। तो इस पीरियड ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर भारत में एक स्टेबल कॉन्टिन्यूम गवर्नमेंट की रहे तो हम अपनी पॉलिसीज को एक्सटेंड करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और
अल्टीमेटली जो हमारी वन इंडिया पॉलिसी होनी चाहिए, जो हमने पीओके को, आज से 10-12 साल बाद हम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में होंगे कि हम, जैसे हमने धारा 370 हटाई है, हम पीओके में भी अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग कर पाए जी, राइट। तब चाइना और इंडिया के बीच का जो भी गैप है वो और कम हो चुका होगा जी। और क्योंकि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, हम अगर उस एरिया को अपने अंडर लेते हैं तो वो जो सीपेक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो कट जाता है जी। तो चाइना की रफली $70 बिलियन की वो जो इन्वेस्टमेंट है, और $70 बिलियन से भी ज्यादा जरूरी है कि जो उन्होंने ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स बनाए हैं वो सारे कट जाएंगे। ये भारत को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। तो मेरे को लगता है कि भारत को इस वक्त जो एक फ्लूइड डिप्लोमेटिक पॉलिसी, जो हमने इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनाई हुई है, उस पर चलना चाहिए और अपने आप को स्ट्रांग करने पे अगले 10-15 सालों में, ताकि हमारा और चाइना का गैप, देखिए आज इंडियन इकोनॉमी एक पेस पे ग्रो कर रही है, पर 1-2 क्वार्टर से पता नहीं चलता। अगर ये 10-15 साल हम यही करते रहें और उन ग्लोबल टेंशन्स के कारण चाइना का ध्यान अपने इलेक्शंस या ताइवान या अमेरिका के साथ ग्लोबल सुपर पावर बनने में लगा रहे, तो हम अपने आप को काफी आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी बात होती है तो रशिया ये स्टैंड देता है कि हम उसको मिलिटराइज ही रखेंगे, उसको फ्री नहीं करेंगे। देखो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो रशिया वहाँ पे प्रेजेंट है और रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस में ही यूक्रेनियन साइंटिस्ट उस न्यूक्लियर प्लांट को चला रहे हैं जी, राइट। अब जिम्मेदारी दोनों देशों की है जी। रशिया को भी अपने छोटे से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए उस एरिया से अटैक नहीं करने चाहिए जी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस एरिया की सारी पॉपुलेशन अगले 30-40 सालों तक उन पे, बच्चों पे, सब पे उसका एक असर रहेगा और वो एरिया एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, जो मेरे को लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं है जी। और ये उस रिस्क को, फिर वॉर को और बहुत ज्यादा एस्केलेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। तो क्योंकि रशिया इस वक्त उस एरिया के कंट्रोल में है, तो सबसे पहले रशिया की जिम्मेदारी बनती है कि उस एरिया में से मिलिट्री एक्टिविटी, वहां से अटैक, रशिया वहां से अटैक कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे वापस अटैक होंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण वापस अटैक नहीं होंगे। पर मेरे को लगता है कि इस तरह की ह्यूमंस को शील्ड बना के इस तरह का अटैक रशिया, मतलब कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये इनह्यूमन पॉलिसी है। हम इसके लिए रशिया की कड़ी निंदा होनी चाहिए। सिमिलरली यूक्रेन को भी अगर इस वक्त वो रशिया के कंट्रोल में है तो उस एरिया को नो वॉर जोन कर दे। आप दूसरे एरिया पे उनको भी फोकस करने की जरूरत है। रशिया अगर उसको डीमिलिटराइज करता है या वहां से अगर अटैक नहीं करता है तो क्योंकि ये लड़ाई का टाइम है, फ्लूइड टाइम है, गलत डिसीजन हो सकते हैं। और ये इंश्योर करना, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो हैं, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस वक्त इंश्योर करे कि जो न्यूक्लियर प्लांट है वो सेफ तरीके से चल रहा है। अगर रिस्क लग रहे हैं तो धीरे धीरे न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने के भी तरीके होते हैं जी। आप न्यूक्लियर प्लांट को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां से कितनी एनर्जी कितने जगह पे सप्लाई हो रही है, उसके लिए ऑल्टरनेट चीजें क्या हैं। तो ये अब एक रिस्क एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मीडिया के लिए एक नैरेटिव वाली स्टेटमेंट दी जा रही है ताकि या तो रशिया को या यूक्रेन को बदनाम किया जा सके कि कौन सी पार्टी इसमें गलत है। दोनों पार्टीज ये कर रही हैं, दोनों साइड्स पे जो वॉर के हैं, चाहे यूक्रेन या रशिया, वो इस चीज में लगी हुई हैं। अल्टीमेटली इसमें पिसेंगे आम नागरिक यूक्रेन के या उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं। तो इस वक्त इस न्यूक्लियर डिजास्टर को रोकना पूरी दुनिया की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और चाहे डीमिलिटराइजेशन आइडियली तो वही हो जाए सबसे अच्छा है, पर रशिया को वहां से अपना न्यूक्लियर कोई भी मतलब वॉर वहां से नहीं करना चाहिए, कोई भी अटैक जो यूक्रेन के साथ उनकी लड़ाई है वहां से नहीं करना चाहिए ताकि उनको वहां पे रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जी। तो यही सिचुएशन है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड दे शुड बी अगेन। यूक्रेन रशिया वॉर बहुत देर से लड़ रही है, यूक्रेन रशिया वॉर बहुत देर से चल रही है और अब जैसे क्रिमिया में अटैक होने शुरू हो गए हैं, ये वॉर एक अपने आप में एक अलाइव क्रिएचर बन जाता है और वो क्या शेप लेगा और कहां कहां पे एक्शन करेगा आपको पता नहीं होता। तो जितनी जल्दी यूक्रेन और रशिया एक टेबल पे बैठ के सीज फायर अनाउंस कर दें, मेरे को लगता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम सब लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं तो सबको यही प्रे करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। जी शुक्रिया सर मीनिंगफुल इनसाइट्स के लिए। इसी तरह करंट अफेयर्स के लिए, जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।